start solving questions from exercise 3.2. Okay, so matrix multiplication. What is matrix multiplication? Addition. Algebra of matrix. Algebra of matrix means what? Algebra means add करना, subtract करना, into करना और divide करना. Okay, so here just addition of matrix, subtraction of matrix and multiplication of matrix. We know what is the rule. Okay, so one by one questions we have to discuss today. Okay, so first question, very simple questions are given in the exercise. Okay, it takes time to solve. One by one you have to write very clearly. सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना. So some questions we will solve completely. Okay, let us take first question. So very simple question, adding, subtracting, and algebra means also matrix is multiplied by 3 and minus c. So you can get the value, and then we have to find product AB and BA. We know when two matrices are compatible. For addition, for multiplication, addition means same order, and for multiplication, you know what? For first matrix having number of column and second matrix having number of rows must be same for multiplication. Okay, so here addition of two matrices. Okay, so solution. Everyone take seriously math class. At the time of class, just you have to take your copy and pen, because बीच में जो छोटा मोटा चीज होता है ना, बोलूंगा तो उसको कैलकुलेट करके बताना चाहिए, या वर्बली बताना चाहिए ना, तब तो समझ में आ रहा है कि सॉल्व हो रहा है करके. सो इस क्वेश्चन में क्या है? ए बी सी आर गिवन मैट्रिक्सेस आर 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग मींस a plus b. दिस सिंपल स्टेप. सो a plus b निकालना है, a minus b निकालना है, 3a minus c निकालना है. तो वर्बली हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व. सो यू कैन डू इट. बट 3x3 मैट्रिक्स, 3x4 मैट्रिक्स, 2x2 एंड 3x3 मैट्रिक्स, 3x2 मैट्रिक्स, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा ना, सो अच्छे से लिखना है, प्रैक्टिस करना है. केवल वर्बली बोलने से नहीं हो जाता है ना. सो सी हियर फर्स्ट इज व्हाट? a plus b. So you have to write in a proper way. Okay, so a means 2 4 3 2, 2 4 3 2, 2 4 3 2, and 1 3 minus 2 5. b 1 3 minus 2 5, 1 3 minus 2 5. You have to write step by step. एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, वन स्टेप इज रिक्वायर्ड. मींस ये जो एडिशन दिया है ना, फट से 2 and 1 3 करके लिख देने से ऐसा नहीं होगा. बिकॉज जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, सो प्रॉपर स्टेप लेना है. वन स्टेप क्या होगा? इनका एडिशन यहाँ दिखाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन राइट. बिकॉज एडिशन हमको पता है 2 and 1 3 होना है, 3 7 होना है. बट 2/3 हो, 3/3 हो, चाहे जितने भी ऑर्डर का हो, वन स्टेप ऐड करना हो तो लिखना ही पड़ेगा. 2 + 1 4 + 3 एंड 3 - 2 एंड 2 + 5. यू नो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं. ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको ऐड करना है. सो देन यू कैन राइट 3 7 1 7. दिस इज a plus b. Similarly, ये माइनस b, फॉर फाइंडिंग a minus b. ये माइनस b के लिए क्या करना है? a minus b, दिस इज a plus b. ओके, a plus b. सिमिलरली a minus b, ये माइनस b में यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर नेगेटिव आएगा, एंड यहां पर नेगेटिव साइन शो करना है. 2 - 1, 2 - 1, 4 - 3, 3 - -2, -2, 2 - 5, 2 - 5. Then value will be different here only. 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होना जाएगा? 3 1
this is 5, this is -3. This is subtraction. This is subtraction. Okay, and then 3a minus c. 3a minus c, इसका स्टेप उठाना है ना? This is subtraction. Now third question. Question third, यह क्या करना है? 3a minus c करना है. 3a minus c. C matrix is given. किसी को नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? -2 5 and 3 4. 3a minus c है थर्ड नंबर में. 3a means this. 3a मैट्रिक्स को लिखना है, 3 को बाहर लिखना है. ओके, माइनस ऑफ c. c है -2 5 3 4. क्लियर? सो यहां पर फिर चेंज हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप 2 स्टेप और देयर, बिकॉज एक स्टेप बढ़ जाएगा यहां पर. शॉर्ट में नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन होने का मीनिंग क्या होता है? जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय दिस 3. ओके, सो क्या होना है यहां पर? 3 into 2 6, 12, 9, 6, and then write -2 5. This is matrix C. Now subtraction. Subtraction means like this: 6 minus subtraction, 6 minus -2, 12 minus 5, 9 minus 3, 6 minus 4, and now you can reduce it. 6 plus 2 8, 12 minus 5 7, 9 minus 3 6, and 6 minus 4 2. So this is the value of 3a minus c. So स्टेप जो है ये मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, रिपीट कर लेना है, उसके बाद फिर सब्सट्रैक्शन. एक एक ऑपरेशन में एक एक लाइन लिखना है. ओके, सो दिस इज ये 3a minus c. Now ab and ba, we will find ab and ba. तो ab means multiplication, ba means multiplication. Both are defined or not? हेलो, जो मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों डिफाइन है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन कल पढ़े ना? हेलो, यस सर. कल मल्टीप्लिकेशन पढ़े? हेलो, तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है कि नहीं? AB इज डिफाइन और नॉट? मैं क्या पूछ रहा हूं? AB इज डिफाइन और नॉट? डिफाइन मीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए डिफाइन भी होना चाहिए ना. बट यहाँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑलवेज डिफाइन, बिकॉज दोनों का ऑर्डर सेम है ना, ए बी और ए का और बी का. सो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स सेम ही होना है, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो दिस इज डिफाइन. सो ए बी मीन्स 2 4 3 2, 2 4 3 2, and B 1 3 minus 2 5, 1 3 minus 2 5. ओके, ये दो मैट्रिक्स है, पहले ये लिख दिया फिर B लिख दिया. ये 2/2 का है, ये 2/2 का है. सो कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड लाइन जो है, अभी जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रो मीन्स एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे होता है? फर्स्ट कॉलम से दोनों पे, सेकेंड कॉलम से भी दोनों, और यहां ऑर्डर 2/2 2/2. फाइनल मैट्रिक्स विल बी आल्सो 2/2. सो 1 2 3 4 एलिमेंट मिलना है. सो फर्स्ट कॉलम को इस रो के साथ मल्टीप्लाई देन ऐड. मल्टीप्लाई मीन्स 2 into 1, 4 into 3 minus 2 plus 4 into minus 2. फिर इसी कॉलम का इसके साथ हो गया, इसी कॉलम का फिर इसके साथ 3 into 1 plus 2 into minus 2. फिर इस कॉलम का इस रो के साथ 2 into 3 plus 4 into 5.
ये कॉलम फिर इसके साथ 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5. दिस इज द प्रोसेस मल्टीप्लीकेशन, रो बाय कॉलम. एक कॉलम से कंप्लीट करना है रो को, क्लियर, एंड देन सेकेंड कॉलम से कंप्लीट करना है, जो रो बाय कॉलम. ओके, नाउ यू कैन राइट इट इन शॉर्ट. क्या हो जाएगा ये 2 minus 6. 8 minus 6. Here 6 plus 20, 20. 26. 3 minus 4 minus 1. 9 plus 10, 19. This is multiplication AB. Okay. So BA की वैल्यू क्या है? सॉल्व करो. सब कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, बीए की वैल्यू फाइंड करो और मेरे को बताओ. ओके, 1 मिनट टाइम दिया. बीए इक्वल्स टू, जस्ट इन राइट इन रिवर्स ऑर्डर, 1 3 minus 2 5 and 2 4 3 2, ये. ओके, सो स्टेप, ये स्टेप लिखना है. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जस्ट टेल मी वैल्यू. सब लोग पढ़ने बैठे हो, मॉर्निंग क्लास है, सबसे पहले क्लास मैं लिया हूं बिकॉज केमिस्ट्री क्लास था. मॉर्निंग में उनको प्रॉब्लम, इसलिए मैं ले रहा हूँ, पर मॉर्निंग में सब रेडी रहना पढ़ने के लिए. क्या होना है वैल्यू? हेलो Sir, 11, 10, 11, 2. 11 10 11, 2. 11 2. दिस इज आंसर ना. ओके, 2 plus 9 11. 2 plus 9 11 minus 4 plus 15 minus 4 plus 15 11. Okay, 4 6 11 10 and minus 8 plus 10 2. Okay, so this is BA. Okay, एक स्टेप यहाँ नहीं लिखा हूँ, ये वाला. ऐसा डायरेक्ट लिखने से नहीं होगा ना, अगर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए बोलता है तो 3/3 हो 3/2 हो, जो भी हो हायर ऑर्डर का. सो वन स्टेप यू हैव टू राइट. ओके, सो ये दोनों निकला. देखो BA एंड AB बोथ आर डिफाइंड बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का था, and but they are not equal. यहाँ दिख भी रहा है कि ये भी, we see that AB equals to not BA. AB equals to not BA. डिफाइन है, हो गया फिर भी. ओके, नाउ इसमें एक AB equals to BA के लिए एक एग्जाम्पल दो. एग्जाम्पल कैसे होता है? इस टाइप से. ये इसको ले लेते हैं, बी इसको ले लेते हैं. हम इनका ए बी निकाला, डायरेक्ट कर लेते हैं. एग्जाम्पल देख रहे हैं, ए बी और बी ए इक्वल आता है कि नहीं. क्या वैल्यू आएगा इसका? हेलो, इस डायगोनल में हमने 0 लिया है, और कुछ भी एलिमेंट लिख दो, तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है. 2 एंड देन 0 एंड इसका क्या आना है? 0 10 एंड बी ए इक्वल्स टू, ऑल्सो फाइंड बी ए इक्वल्स टू. बी ए इक्वल्स टू फाइंड करके देखते, बी को पहले लिखते हैं 1 0 0 5 एंड 2 0 0 2. ओके, सो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? इसका वैल्यू क्या होना है? इसका वैल्यू क्या होना है? सेम है ना. 2 आएगा, 0 और फिर 0 10, सेम आना है वैल्यू. मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है,
ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है। ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी दोनों डिफाइन होता है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों डिफाइन भी हो गया और दोनों की वैल्यू सेम भी आ गया, ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये और ये दोनों सेम। सो ये ए बी इक्वल्स टू बी ए। अगर एग्जाम्पल देना है कि व्हेन टू give an example when of two matrix A and B where AB and BA both are defined and equal, not equal भी हो सकता है, यहाँ पर 1 ले लो, इक्वल नहीं होगा, बट अगर इक्वल लाना है तो ये डायगोनल में 0 ले लेने से हो जाता है, दूसरा डायगोनल में भी 0 लोगे तो हो जाएगा। सो दिस इज एग्जाम्पल फॉर AB BA both defined and equal. Now one thing is important here that रियल नंबर के केस में जब पढ़ते हैं ना, इन द केस ऑफ रियल नंबर, नंबर्स जब पढ़ते हैं, सपोज वी आर हैविंग लाइक दिस a into b equals to 0, a into b where a and b are real numbers means product of two number is 0. so क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे ये होता है ना, या ऐसा फैक्टर होता है इक्वल्स टू 0, सो क्या करते हैं, फर्स्ट आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल्स टू 0, यही करते हैं ना रियल नंबर के केस में। इन द केस ऑफ रियल नंबर जब भी रीड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, दो चीज का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मीनिंग ये कब हो पॉसिबल है, इनमें से कोई एक 0, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, बी इज क्वांटिटी, ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज 0, दैट मींस व्हाट वी आर राइटिंग लाइक दिस, ये आइदर a इक्वल 0 और b इक्वल 0, ये होना भी चाहिए बिकॉज 0 आना है ना प्रोडक्ट। अगर ये 2 रहे और ये 3 रहे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 0 तो होना नहीं है, बट 0 होने के लिए किसी न किसी को 0 होना पड़ेगा। दिस इज द नंबर सिस्टम का केस है। बट मैट्रिक्स में अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स भी लिया जाए तो भी मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स में आ सकता है ना। सो एग्जांपल कैसे लिया जाए इसका बताओ। इसका अभी जो लिया था ना उसका उल्टे ऑर्डर में लेना है। सपोज एक मैट्रिक्स लिया जाए ए इस टाइप का 0 0 और यहाँ कुछ नंबर रख देते हैं, और दूसरा मैट्रिक्स है 0 0 यहाँ कुछ नंबर रख देते हैं बी ए बी। क्लियर हो ए बी। अब ये अगर ए बी है, अब यहाँ पर 2 लिख देते हैं 1 या 3 लिख देते हैं 5, ना इसका प्रोडक्ट करते हैं ए बी इक्वल्स टू, टेल मी प्रोडक्ट क्या होना है। हेलो, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स, दिस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स बिकॉज ये एलिमेंट्स जीरो नहीं है, नॉन जीरो मैट्रिक्स। दिस इज नॉट आल्सो नॉन जीरो मैट्रिक्स बिकॉज ये एलिमेंट है कुछ वैल्यू। सो इन दोनों का प्रोडक्ट में एलिमेंट क्या आएगा, टेल मी क्या होना है। हेलो, 0। सब में 0 0 आएगा ना। यस सर। जो रूल है उसके हिसाब से ये कॉलम से ऐसे करो, इस कॉलम से ऐसे, फिर इस कॉलम से ये, इस कॉलम से, तो सब में 0 0 आ जाएगा। सो ये क्या मिला, जीरो मैट्रिक्स। ए बी इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स मींस इन केस ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स अलजेब्रा, इन केस ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, नंबर सिस्टम नहीं बता रहे हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा में अगर दो मैट्रिक्स हो और दोनों में से एक नॉन जीरो हो, तो इसमें से दोनों नॉन जीरो है, नॉन जीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। नंबर सिस्टम में दो नंबर मल्टीप्लाई करो, अगर जीरो तभी आएगा जब एक नंबर आइदर ऑफ 2 ऑन ऑफ 2 इज 0। यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो। दिस इज एग्जांपल। एग्जांपल लेने का टेक्निक है ये ना, पहले ये 0 ले लो और इधर 0 ले लो और बाकी कोई भी नंबर इसमें रख दो। क्लियर है। सो इस टाइप से एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम्पल देने के लिए भी बोलते हैं, है ना। सो ये प्रोडक्ट को अच्छे से समझने का टेक्निक है ना। क्वेश्चन सेकेंड थर्ड फटाफट देखते हैं। देखो क्वेश्चन सेकेंड कंप्यूट द फॉलोइंग, कुछ नहीं, एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन ही है, पूरा एडिशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स फाइनल आंसर बताना है, आप फटाफट लिख देते हैं। देखो सेकंड मैट्रिक्स कंप्यूट द फॉलोइंग लिखा है ना, शॉर्ट करना है। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 2a 2b 0 2a, यही होना है ना। हेलो, सब लोग ना ध्यान से सुनो और देखो और लिखो भी जो लिख रहे हो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर देना उतना आसान नहीं होता है। हाँ, ये है कि बिना उसके गोला लगा के आ जाओ, पता नहीं कुछ भी ABCD कुछ भी कर दो,
ऑब्जेक्टिव में पूरा डीपली स्टडी होना चाहिए। सो फर्स्ट मैट्रिक्स से एडिशन क्या होना है? हेलो आंसर को लिख दे रहा हूँ फटाफट। फर्स्ट क्या होना है? देखो ऐड होना है 2a 2b 0 2a 2a 2b 0 2a, ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड का, सेकंड में देखो, सेकंड में भी मैं लिख नहीं रहा हूं, बट यू हैव टू राइट इट। वन स्टेप लिखना पड़ता है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड में भी एडिशन कर रहा हूं और मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं क्या होना है। देखो पहला वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो दूसरा एडिशन जब करेंगे ना स्टेप लिखना पड़ेगा, 2 और 3 लाइन लिखना है लॉन्ग करके। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मींस ab प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, उसमें b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc b प्लस c का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac a माइनस c होल स्क्वायर एंड देन a माइनस b होल स्क्वायर। इस टाइप से लिखना पड़ेगा। वो स्टेप करेंगे तो क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर है और यहाँ b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक स्टेप बीच में लिखना है, और यहाँ पर a माइनस c का होल स्क्वायर है और यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला बनेगा ना, वो दिख तो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसको शॉर्ट में ये लिख देना है, ये लिख देना, शॉर्ट कर देना। थर्ड नंबर, थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन का ऐड करना है, बस वन स्टेप लिखना है, दिस प्लस दिस एंड सो ऑन। फोर्थ का क्या होगा आंसर, शॉर्ट करके बताओ तुम लोग, शॉर्टली फटाफट बताओ फोर्थ का आंसर। आंसर ऑफ फोर्थ एकदम सिंपल मैट्रिक्स है ना। हेलो, सिंपल मैट्रिक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना इसमें। यस सर। क्या मैट्रिक्स बनना है सर 1 1 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सब तो 1 1 1 आ जाएगा पूरा मैट्रिक्स, है ना। वो वन स्टेप लिखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक, 1 1 1 1, ये हो गया एडिशन है। बाय स्टेप यू हैव टू राइट इट, ओके। थर्ड क्वेश्चन, compute the indicated products, ओके। सो यहां पर देखो, फर्स्ट में तो क्लियर है, प्रोडक्ट करने का जो रूल है वही करना है। सिंपल स्टेप, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एज होमवर्क, करना है इसको, है ना। सेकंड में क्या है, सेकंड का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स में तो स्क्वायर मैट्रिक्स था दोनों, तो कंपेटिबल है। थर्ड में, सेकंड में ऑर्डर क्या बन रहा है, सेकंड मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद जो ऑर्डर बनना है 3/1 1/3, 3/1 1/3 है, ऐसा दिया है ना, ऐसा ऑर्डर का मैट्रिक्स है वहां पर, ठीक है ना। 1 2 3, ये क्या लिखा 1 2 3, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये, और दूसरा मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का है। अच्छा, क्वेश्चन पूरा जगह ले लिया ना, ओके। ये क्या होना है 1 2 3, 3/1 एंड देन 1/3, 2 3 4, और अगला मैट्रिक्स 2 3 4, दिस इज 1/3। सो दिस इज द क्वेश्चन सेकेंड, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलने वाला है। हेलो, इसकी जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करेंगे, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। हेलो, ये मैट्रिक्स है 3/1, दिस मैट्रिक्स इज 1/3, 3/3 का मिलेगा, 3/3 का मिलेगा। तो फर्स्ट क्या होता है, कैसे करते हैं पहले बताओ। प्रोडक्ट करेंगे ना अभी, इसमें ये नंबर ऑफ कॉलम है, ये नंबर ऑफ रो है, सेम है, सो कॉम्पेटिबल है, प्रोडक्ट तो कर सकते हैं। प्रोडक्ट करना है तो कॉलम से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कॉलम से ये जो 3 रो है सबको करना है। तो फर्स्ट कॉलम ओनली 2 एलिमेंट, तो फर्स्ट रो तो 1 into 2, 1 into 2, 2 into 2, 2 into 3, 1, ये। फिर सेकेंड कॉलम से, सेकेंड कॉलम से फिर 1 into 3, 1 into 3, 2 into 3, 3 into 3, फिर थर्ड कॉलम से रो वाइज
1 into 4, 2 into 4, 3 into 4, ये जो वैल्यू आया दिस इज थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, बिकॉज 3/1 1/3 3/3 का मिलना है। ये क्या हो जाएगा 2 4 6 2 4 6, दिस 3 6 9 3 6 9, 4 8 12 4 8 12, 3/3 matrix. So this is the product. Okay, third matrix, the product of third matrix will be the of order, किस ऑर्डर का होना है? हेलो, थर्ड मैट्रिक्स, थर्ड जो प्रोडक्ट है उसमें किसने ऑर्डर का आएगा? 2/2. बिकॉज फर्स्ट है 2/2 एंड सेकंड है 2/3, सो 2/3 का होना है। फर्स्ट है 1 minus 2 2 3, 1 minus 2 2 3, दिस इज 2/2 एंड सेकंड क्या है? सेकंड है 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, दिस इज 2/3 1 2 3 and 2 3 1. ओके, सो इसका कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स बनना है? फर्स्ट 2 एंड दिस 2/3 का बनना है। 2/3 का बनना है तो इसमें भी वही स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू राइट फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट क्लियर है कि 2/3 का बनना है, मतलब 2 रो बनना है, कॉलम 3 बनना है। ओके, सो क्या होगा? स्टेप क्या होगा? फर्स्ट कॉलम आना है, सेकंड कॉलम आना है, थर्ड कॉलम आना है। तो फर्स्ट कॉलम 1 2 1 into 1 प्लस -2 into 2, मतलब ये ऐसे, फिर ये इसके साथ, फिर 2 into 1 प्लस 3 into 2, ये फर्स्ट हुआ। सिमिलरली यहां 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 लिखना है। सो टेल मी आगे का आंसर क्या होना है? ये तो 1 -4 -3 2 plus 6 7 and remaining 4 values. Tell me. चलो सॉल्व करो। ओके, आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट विल बी द वैल्यू? यहां वैल्यू क्या आएगा? कॉपी में लिखो और इस बताओ मेरे को। 2 -6 -4, 1 9 and 13. यहां पर क्या आएगा? 1 1 और यहां 13 13. और यहां 9 मल्टीप्लिकेशन हो कैसे रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉलम उठ के ये हुआ, इस कॉलम से फिर ये 2 जगह फिल होगा, इस कॉलम से ये 2 जगह फिल होगा। इतना स्लो। 7 की जगह 8 होगा। 7 की जगह 8, हाँ यस। देखो मैं इसको करूंगा तो पूरा क्लास खत्म, आगे कुछ समझ ही नहीं पाऊंगा। सो फॉर प्रैक्टिस फर्स्ट कॉलम लेना है 3 एलिमेंट, सेकंड कॉलम लेना है 3 एलिमेंट, थर्ड कॉलम लेना है 3 एलिमेंट, सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। फिफ्थ का ऑर्डर क्या होगा? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बताओ। फिफ्थ में ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 3/2 का, 2/2 का, 2/3 का। ऑर्डर कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा फिफ्थ में? मल्टीप्लिकेशन क्या होगा फिफ्थ का ऑर्डर? 3/3 होगा, मल्टीप्लाई करते बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम को लेके तीनों में मल्टीप्लाई, सेकेंड को लेके तीनों में मल्टीप्लाई, थर्ड को लेके तीनों में मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। सो 3/3 का आ जाएगा, पहला का 3, लास्ट का 3। ओके, सिमिलरली सिक्स में क्या होना है? सिक्स में 2/3 and 3/2 ऑफ व्हिच ऑर्डर? कौन से ऑर्डर का मिलेगा? 2/2 का मिलेगा। चलो बताओ 2/2 का मैट्रिक्स बनना है और क्या एलिमेंट क्या आएगा? डायरेक्ट बताओ।
क्या करते हैं 2 1 3 का 3 माइनस 1 3 में इंटू होना है और ऐड होना है, ठीक है। सो होना क्या है फटाफट बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व होता है। क्या होना है बताओ, 6 माइनस 1 5 प्लस 9 14, यही होना है ना। फर्स्ट एलिमेंट, Yes, sir. सेकंड एलिमेंट, यहां वाला एलिमेंट बताओ, यहां वाला नीचे वाला क्या होना है 2 1 3 का माइनस 1 0 2 में इंटू माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6 4 आएगा ना। फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो के साथ -2 प्लस 0 प्लस 6 4, इज इट राइट और नॉट, ये राइट है कि नहीं? हेलो, यस सर। अब बताओ, ये दोनों बता दो। 2/2 का तो बनना है, -3 0 1 से मल्टीप्लाई करना है, -9 प्लस 0 प्लस 3 -9 -6 ना, -6. यस -3 0 1 3 प्लस 0 प्लस 2 5. 5, ये होगा। वो स्टेप लिखा नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेट किया। ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। हाउ कैन यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, वेदर इट इज दे आर कंपेटिबल और नॉट। कंपेटिबल मींस प्रोडक्ट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। फिर देखो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट सी इट व्हाट if A equals to this, B equals to this, C equal to this, there are three matrices given, 3 by 3 order. Then compute A plus B and B minus C. You know, very simple. A plus B निकालो, B minus C निकालो. Also verify that. Verify करना है. A plus B में माइनस दो, both side you have to calculate. पहले तो A plus B निकालना है, फिर B minus C निकालना है. फिर वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगेन जो a प्लस बी मिला उसमें c को सब्ट्रैक्ट करो, जो b माइनस c मिला उसमें a को ऐड करो, दोनों की वैल्यू सेम दिखना चाहिए, दैट इज द वेरिफिकेशन। ओके, ये सिंपल है, ये प्रैक्टिस के लिए है, इसको कर सॉल्व करना घर में, है ना। क्वेश्चन फिफ्थ का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, यू कैन राइट इट्स वैल्यू डायरेक्टली। They are given A equals to this matrix. You see, क्वेश्चन दिख रहा है ना, स्क्रीन पे है। हेलो, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट वैल्यू बताओ मेरे को, एकदम सिंपल है क्वेश्चन। ये देखो, और बिग कर दिया हुआ ना। क्या होना है, A 3/3 मैट्रिक्स है, B 3/3 मैट्रिक्स है, देन कंप्यूट 3A minus 5B। यू सी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 डिवाइडेड बाय 3 है मैक्सिमम एलिमेंट में, और सेकंड में मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स में 5 से डिवाइड है मैक्सिमम प्लेस पे। तो जैसे 3 का इंटू करेंगे और 5 का इंटू करेंगे और नीचे वाला क्वांटिटी खत्म हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। सो क्या हो जाएगा वैल्यू, 3A minus 5B, एकदम सिंपल मैट्रिक्स है। क्या हो जाएगा, हेलो 2 3 5 एंड 1 2 4 एंड यहां क्या लिखूं, 7 फिर 6 2 एंड देन 5 से मल्टीप्लाई होना है, 1 पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 5 1 2 4 2 3 5 1 2 4 एंड 7 6 2 7 6 2। ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन होना है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हो जाना है, एंड देन सब्ट्रैक्शन, यू नो सब्ट्रैक्शन क्या कैसे करना है, 2 - 2 एंड सो ऑन। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 3 - 3 0 5 - 5 0 1 2 4 0 0 सब 0 0 है। सो दिस इज आंसर, सिंपल ना। सो इसी टाइप से क्वेश्चन है ना, आगे 6 क्वेश्चन सी। ओके, जस्ट सिंप्लीफाई इट, इसमें मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या वैल्यू आना है, सिंपल है ये क्वेश्चन। और ये
very important also for 1 marks question, 1 or 2 marks question, है ना. सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू क्या होना है. यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगेगा और ये सिंप्लीफाई हो रिड्यूस हो जाएगा ये, है ना. तो फर्स्ट वैल्यू क्या होना है, सिंप्लीफिकेशन. शॉर्ट में भी लिखोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है ना. cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा sin थीटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. cos थीटा का पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, sin थीटा का मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई करके स्टेप लिख रहे हैं. ओके, सो गिवन इक्वल्स टू, जो गिवन है उसी की वैल्यू इक्वल्स टू ये है cos का इनटू माइनस sin थीटा cos थीटा, माइनस sin थीटा cos थीटा, और फिर क्या हो जाएगा उधर cos थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. ये फर्स्ट मैट्रिक्स में ये हो जाएगा. प्लस सेकंड में sin थीटा का मल्टीप्लिकेशन, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, एंड sin मल्टीप्लिकेशन sin cos sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा. दिस अब ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर. 1 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते समय 1 टाइम्स यू हैव टू राइट, लिखना है ये प्लस ये एंड देन 1 लिखना है. बट यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सबको समझ में भी आ रहा होगा क्या होना है. एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, बस टाइम टेकिंग है ना. सो ये प्लस ये 1, ये और वो 0, ये और ये 0, ये और ये 1, 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2/2. 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना. ये डायगोनल 1 1 है, ये 0 0 है, तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन. ये सिंप्लीफाई किया ना अभी. नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में वैल्यू निकालना है. दिस इज मैट्रिक्स इक्वेशन. मैट्रिक्स इक्वेशन मीन्स फॉर इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन, in case of linear equation, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. इसको सॉल्व करने का क्या टेक्निक है, फर्स्ट टाइम जब कैलकुलेट किए थे ना, फर्स्ट टाइम फॉर सॉल्विंग दिस टू लीनियर इक्वेशन, स्टेप क्या लेते हैं, क्या करते हैं. हेलो, जनरली क्या स्टेप उठाते हैं, बहुत सारे मेथड है. एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, ऐड करो तो x की वैल्यू आएगा, सब्सट्रैक्ट करो तो y की वैल्यू आएगा. सेम प्रोसेस यहाँ मैट्रिक्स के साथ है. जनरल मींस वेरिएबल मैट्रिक्स x है y है, x प्लस वाई इक्वल्स टू सम पर्टिकुलर मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू सम पर्टिकुलर मैट्रिक्स. सो फाइंड x एंड y, x एंड y को अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं. बिल्कुल सेम स्टेप है. दिस इज फॉर नंबर्स, और गिवन क्वेश्चन में जो है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है. क्लियर है. अब सपोज ये तो इसका कोफिशिएंट 1 1 था, इसका कोफिशिएंट 1 1 था, सो एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग से वैल्यू आ जाता है. बट अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि ये 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, तो क्या स्टेप उठाते हैं, मेरे को ये बता दो तुम लोग बस. हेलो, सब लोग देख रहे हो ना. 2x plus 3y equals to 2, 3x minus 2y equals to 3. For solving this two linear equation, what is the step? क्या कैसे सॉल्व करते हैं. हेलो, क्या करना है बताओ. by elimination method. एलिमिनेशन कर सकते हैं, बट ये क्या है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी x को एलिमिनेट करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे. बट यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए हमको पहले वाले इसको दोनों कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ता है ना, तभी तो एलिमिनेट होगा. सो इसको 2 से इंटू करो और इसको 3 से इंटू करो तो y, और ऐड करो तो y कैंसिल हो जाएगा एंड देन 6 की वैल्यू x की वैल्यू मिल जाएगा. सिमिलरली अगर x को एलिमिनेट करना है तो इसको 3 से इंटू करो और इसको 2 से इंटू करो और सब्सट्रैक्ट करो तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा. ये तो फॉर नंबर्स के लिए ये सिंपल. Similar method will be used for this matrix equation. यहाँ matrix equation दिया हुआ है ना, x plus जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में x plus y and x minus y है. सेकंड क्वेश्चन वही है 2x plus 3y and 3x plus 2y.
उसमें भी सेकंड वाले में सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एलिमिनेशन से होगा बोथ टाइम और सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है बट ये यहाँ पर जो है पर्टिकुलर मैट्रिक्स है 7025 दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन 3003 दिस इज सेकंड इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन गिवन फर्स्ट। फिर क्या करना है, अभी ऐड करोगे तो y के खत्म, एडिंग क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो y कैंसिल 2x 2 ऑफ x इक्वल्स टू, इन दोनों का एडिंग होना है, ऐड होना है, इन दोनों का ऐड होना है तो 7025 प्लस 3003 एंड यू कैन सॉल्व इट। क्या हो जाएगा ये 7 and 3 10 0 and 2 8 2 8 7 3 10 अच्छा ऐड कर रहे हैं, ठीक 7 3 10 एंड 0 होना है ना 2 0 2 5 3 8 यही होना है ना 7 3 10 0 0 0 2 0 0 और दिस इज 5 ना 5 3 8 ये हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स x इक्वल्स टू ये 1/2 ये 2 राइट साइड में ट्रांसफर होगा, सो 10 0 2 8 जस्ट मैट्रिक्स सॉल्व करने जैसा 1/2 का सभी में इंटू हो जाएगा। सो वैल्यू क्या आना है 5, ये 1/2 का इंटू होना है तो 5 1 4 5 1 4 दिस इज 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। एकदम सेम मेथड जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी टाइप से मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दिस इज x इक्वल्स टू। नाउ सब्सट्रैक्ट करके भी y की वैल्यू आ सकता है, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y 2y आना है, x खत्म हो जाएगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा। बट यू कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y बाय यूजिंग x इक्वल टू दिस इन एनी ऑफ द इक्वेशन, मतलब x की जो वैल्यू है इसको यहाँ रख दो और उसको वहाँ ट्रांसफर कर दो, इससे भी सॉल्व हो जाएगा किसी भी मेथड से जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो क्या हो जाएगा y की वैल्यू putting the value of x in 1 we get, जल्दी बताओ क्या होना है y की वैल्यू, अगर 1 को ले ले 2 को ले ले किसी को भी ले ले, वही जो मेथड होता है सिंपल मेथड, इसमें x की वैल्यू इसमें रख रहे हैं, y की वैल्यू y इक्वल्स टू क्या होगा ये मैट्रिक्स 7 0 2 5 माइनस x की वैल्यू राइट साइड में जाएगा सब्सट्रैक्ट होगा ये 5 0 1 4, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। यहाँ x को उधर ले गए सब्सट्रैक्ट हो गया, x की जो वैल्यू था वो रख दिया। नाउ सॉल्व किया इसको 7 minus 5 2 0 minus 0 0 2 minus 1 1 5 minus 4 1, this is the value of y। ये y की वैल्यू है और पहले x की वैल्यू आया था। सो सिमिलर स्टेप यू कैन टेक फॉर सेकंड क्वेश्चन आल्सो। यहाँ 2x 3y है 3x 2y है, तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट टाइम यू कैन एलिमिनेट y एंड देन एलिमिनेट x बाय मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि सेम कोएफिशिएंट आ जाए, देन यू कैन डू इट। x या y की किसी की वैल्यू आ जाएगा और एक इक्वेशन में रख देना है तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ओके समझ में आया? हेलो यस सर। बिल्कुल टाइम तो ओवर हो गया। ओके सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, क्या करना है इसमें भी x की वैल्यू निकालना है, y गिवन है। सो वर्बली करके बता दो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मान लो 1 मिनट में होना चाहिए। क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y इक्वल्स टू गिवन 2/2 मैट्रिक्स एंड 2x plus y equals to given another matrix, so we have to find the value of x। so क्या होगा 2x equals to y को ट्रांसफर कर दो, y को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो y की वैल्यू तो गिवन है, so 2x equal to you can get and then x equals to 2 से डिवाइड,
सो व्हाट विल बी द आंसर? टेल मी, आंसर बता दो इसका क्या होना है। क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे? टू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 1 0 -3 2 एंड माइनस y, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा y गिवन है 3 2 1 4 3 2 1 4, ये गिवन इक्वेशन से आएगा, y को उस तरफ ट्रांसफर कर दिए, y की वैल्यू गिवन था वो वैल्यू पुट कर दिए। सो 2x इक्वल्स टू कितना आया? ये आंसर बताओ। x इक्वल्स टू सॉल्व कर रहे हैं तो बता दो x इक्वल्स टू क्या होना है। हेलो, -2 है और यहाँ पर क्या आएगा? फिर -2 है, यहाँ पर क्या आना है? -4 आना है, यहाँ पर क्या आना है? -2 आना है। और ये 2 से उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सब में से 2 चला जाएगा, -1 -1 -2 -1, यही आंसर है ना? तो समझ में आया ना कैसे करना है? सो इस एक्सरसाइज को एक दिन और टाइम लूंगा, उसके बाद आगे बढ़ना है, बिकॉज नहीं तो कोर्स बिल्कुल नहीं होगा। ये तो मैट्रिक्स में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 5-6 क्लास लिया है, मैट्रिक्स में 8-10 लेंगे, है ना? आगे जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो एक एक क्वेश्चन इतना लेंदी रहता है कि एक पीरियड खत्म हो जाएगा एक क्वेश्चन में, और क्वेश्चन का भंडार है। सो जस्ट घर में रहते हो तो सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, सो आज अभी क्लोज कर रहे हैं ना, टाइम हो गया। ओके।